students, in the last two lectures we had studied about rational numbers, irrational numbers, and how to represent the irrational numbers on the number line. That is exercise 1.1 and 1.2 of NCERT book standard 9. Fine. Now in this today's lecture we are going to study about conversion of rational number into decimal. How do we convert a rational number into a decimal? In this we are going to study about two cases. The first case is the remainder becomes 0. Now suppose we divide 7 by 8. Fine. So how do we divide 7 by 8? You all know. 7 अंदर लेंगे, 8 बाहर. Start dividing. 7 is smaller than 8, so we put a 0, we put a decimal point, and we can add now any number of zeros as we want. So it becomes 70. 8 8 is 64. It becomes 6, another 0. 8 7 is 56, minus 4, another 0. 8 5 is 40. It is simple division. Because when we add decimal over here, then we can put as number of zeros as we want. So the remainder comes out to be 0. So the main thing is that when the remainder becomes 0, it means that it is a terminating decimal. Because अभी हमारा terminate हो गया है. That is remainder हमारा 0 आ गया. So it becomes a terminating decimal. Now let us see case 2. In case 2 we will see that the remainder is not 0. Now see how. When we divide 10 by 3, ठीक है? 10 अंदर, 3 बाहर, 3 3s are 9. Then we put a decimal and we can add 0 over here. Again 3 3s are 9. Again 1 remainder, 0, 3 3s are 9. Again 1 remainder, 0. And it goes on like this. That is, we see that this 3 3 3 will go on repeating. So, and the remainder will also come 1. That means this is non-terminating because the remainder is non-zero. That means it is non-terminating. And because 3 is going on repeating, so we say it is a repeating decimal. So, this becomes non-terminating repeating decimal. देखो ये अभी हमने देखा by division that if the fraction is terminating or not terminating. अब we will see without actual division we have to find if the number is terminating or not. Can we do this way also? हमें divide नहीं करना पड़े and we can say if the number is terminating or not terminating. So this is also very easy. Like the fraction is suppose 5 upon 32. इसमें हमें numerator को नहीं देखना, we only have to see to the denominator. Denominator is 32. Find the prime factors of 32. They will come out to be 2 to the power 5. You all know how to find the prime factors, isn't it? So ये आ गया हमारा 2 to the power 5. So we see that 32 has no other prime factor other than 2. अगर हमारा नीचे denominator के prime factors में 2 आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, means it is terminating. ठीक है? So it has only prime factor 2, no other factor other than 2. Therefore this is terminating. या 2 के साथ हमारा और क्या आ सकता है? 5 आ सकता है. Only 2 options आते हैं, या तो 2 आए या 5 आए prime factors में. देखो, like this number is 27 upon 80. हमें denominator के factors निकालने हैं. 80 के factors निकाले, 2 to the power 4 and 5. ये दो factors आए. Again, because 2 है and 5 है, 80 has no prime factor other than 2 and 5. Therefore, it is also terminating. तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स में प्राइम फैक्टर्स 2 होता है या 5 होता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. Now let us take one more example. See, 11 upon 24. When we find the prime factors of this denominator, that is 24, हमारे factors आ रहे हैं 2 to the power 3 multiplied by 3. So what do you all see, children? 24 has prime factor 3 which is other than 2 and 5. हमने बताया ना सिर्फ prime factors में 2 या 5 आने की permission है और कुछ factor नहीं आ सकता. तो क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया means it is non-terminating. तो इससे हमें क्या पता लगा children? Note this thing. If denominator of a fraction has no prime factor
other than 2 and 5, then it is a terminating decimal. क्या बोल रहे हैं वो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में फैक्टर्स खाली 2 और 5 होते हैं फ्रैक्शन में, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. Our next topic is conversion of non-terminating decimal in the form p upon q. जो हमारे non-terminating decimal आ रहा था, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता, उनको हम कैसे p upon q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे, रेकरिंग भी होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स. तो देखो x इज इक्वल टू 0.6 बार. इस 6 बार का मतलब क्या है? बार मतलब कि ये हमारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. जिस भी नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है मीन्स वो नंबर हमारा रिपीट होता है. तो ये क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन. अभी हमारा बार एक डिजिट के ऊपर है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट के ऊपर होता तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 100. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10. क्या हो जाएगा हमारा? x को 10 से किया तो इट बिकम्स 10x, and when you multiply this by 10, this point will shift on the right side. It will become 6.666. इस इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, so it becomes 10x is equal to 6.666. Now this is the first equation, this is the second equation. ठीक है. अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से माइनस करेंगे. 2 minus 1. See, 10x minus x, it becomes 9x, and 6.666 minus 0.666, it will become 6.000. So 9x is equal to 6, means x is equal to 6 upon 9, that is equal to 2 upon 3. तो देखा आपने, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने चेंज कर दिया किस फॉर्म में? p upon q की फॉर्म में. क्लियर? नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. x is equal to 0.36 बार. अभी आपको बताया कि अगर हमारा ये बार 2 डिजिट्स के ऊपर है, इट मींस ये दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 0.3636 एंड सो ऑन. ठीक है. अब बिकॉज हमारा 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. वेरी गुड. देखो ये आ गया हमारा 100x. 100x इज इक्वल टू, पॉइंट को हम 2 डिजिट्स शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 36.36. अगेन 2 minus 1, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 100 minus x, it will become 99x, और 36.36 में से हम 0.3636 माइनस करेंगे, it will become 36.0. That is 99x is equal to 36 and x is equal to 36 upon 99. इसको फर्दर हम रिड्यूस करेंगे by, will divided by 9, और हमारा रिड्यूस करके आएगा आंसर 4 upon 11. अब देखो वापस से हमने इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को we reduced it in the form of p upon q. ठीक है. Now another example. See, x is equal to 0.57 बार. अब देखो हमारा बार सिर्फ यहाँ 7 के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है. ठीक है ना. तो एक डिजिट के ऊपर बार है, मीन्स हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो हमारे 7 के ऊपर बार था इसलिए हमने क्या किया? 57777. ठीक है. अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 10x इज इक्वल टू, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, इट बिकम्स 5.777. वापस से 2 minus 1, 10x minus x will become 9x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5.77 में से हम 0.57 को माइनस करेंगे और आंसर विल बिकम 5.2. अगेन x इज इक्वल टू 5.2 डिवाइड बाय 9, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, दैट इज 52 अपॉन 90, and again we'll reduce it, the answer will come to 26 upon 45. Again we have converted a non-terminating decimal in the form of p upon q. See, this is so simple, isn't it? Now see, the next topic is, जो हम क्लासिफाई करेंगे डेसिमल्स. जो हमने अभी तक पढ़ा क्या है कि डेसिमल्स दे कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, isn't it? So हमने कैसे क्लासिफाई किया डेसिमल्स को? It can be terminating also and non-terminating also. Terminating means कि हमारा जो रिमाइंडर है it should be 0. Like we saw 7 upon 8. हमने इसको डिवाइड किया तो we got 0.875. अभी पीछे देखो जो हमने किया था, है ना, उसमें हमारा रिमाइंडर आया था 0. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या कहा था कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये भी हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता
होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये तो अभी हमने पढ़ा कि 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, सो वी गॉट 3.333 और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, हमारा 3 रिपीट होता जा रहा था, इजंट इट? तो हमने क्या लिखा था कि 3.3 बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा रिमाइंडर 0 भी नहीं आता और हमारा नंबर रिपीट ही नहीं होता, एवरी टाइम वी गेटिंग अ न्यू नंबर और उसका कोई एंड ही नहीं मिलता हमें। जैसे अगर हम √2 निकालेंगे तो √2 का हमारा आंसर क्या आएगा? 1.4121356 सो ऑन, हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका कोई एंड ही नहीं है। और देखो इसमें हमारा कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। सेम यू टेक पाई, पाई को हम क्या बोलते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, बट एक्चुअली दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट इट, बिकॉज अगेन द आंसर विल बी 3.14159265 एंड सो ऑन। तो इसका देखो कुछ एंड ही नहीं है, सो एंड नहीं है इसलिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, फाइन। और इसमें हमारा कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अब हमने एक और नया टर्म पढ़ा इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को, कि इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं मोस्टली दो आर रैशनल नंबर्स। जो पाई होता है हमारा दैट इज आल्सो रैशनल नंबर। सो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं रैशनल होते हैं, बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। और टर्मिनेटिंग तो होते ही डेसिमल है, सॉरी रैशनल है, बिकॉज इसका हम पॉइंट हटा के नीचे हम इसमें जीरोस लगा के हम इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग आर रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं दे आर द इरेशनल नंबर्स, इजंट इट? नाउ वी विल सी how to find irrational numbers between two rational numbers. ठीक है, 3 and 4 they are rational numbers, we all know. Okay, so 3 we can write it as 3.000, 4 we can write as 4.000, fine. अब हमें उसी कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि नॉन रिपीटिंग होने चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। नॉन रिपीटिंग मतलब हमारा कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं होगा, सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होगा, रिपीट तो होंगे लेकिन सेम पैटर्न में नहीं होंगे। कैसे? लाइक सी, ये हमारा है 3.00, तो हमसे बड़ा नंबर लेना, हमने ले लिया 3.10, ठीक है। अब रिपीट नहीं होना चाहिए 10, तो हमने क्या किया 100। अब 100 रिपीट नहीं होना चाहिए, सो 1000। तो देखो हम जीरोस बढ़ाते जा रहे हैं, इजंट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 3 और 4 के बीच में हमारा 3.2 भी आएगा, सो सी 3.20। अब 20 रिपीट नहीं होना, so 200 again 2000 and so on। तो ये हमारे क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। अनदर एग्जांपल, 3 और 4 के बीच में 3.8 भी आता है, तो सी 3.80 800 8000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा जीरोस ही बढ़ाएं। सी वी कैन डू इट दिस वे आल्सो, बिकॉज 3 और 4 के बीच में 3.9 भी आता है, सो वी कैन राइट इट एज 3.91 911 911 and 1। so see we are increasing 1 every time। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड दे आर नॉन रिपीटिंग। हमारा हर बार अलग नंबर रिपीट हो रहा है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो 1/7 है, 2/7, तो पहले तो हम जैसे डिवाइड करके उसको डेसिमल में चेंज करते थे, उसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 1/7 का आंसर क्या आएगा हमारा? 0.142857 एंड अगेन ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये रिपीट होगा, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। ऐसे ही 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, वापस से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 285, इसलिए हमने इसके ऊपर भी बार लगा दिया बिकॉज ये भी हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन दिस इज रिपीटिंग।
अब हमें इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है. इरेशनल लिखना है मीन्स ये हमारा नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. तो देखो दिस इज 0.14 एंड दिस इज 0.28. तो इसके बीच में हमारा 0.15 आएगा. तो 0.15 0, फिर 15 0 0, 15 000, 15 4 zeros एंड सो ऑन. ऐसे रिपीट करते जाएंगे हम. या कैसे कर सकते हैं हम 0.17 देन 117, फिर 1117, फिर 11117, अगेन 1111. ऐसे करके हम नंबर ऑफ 1 बढ़ा सकते हैं. तो इस तरह से हम सेम पैटर्न में रिपीट नहीं करना, हर बारी पैटर्न चेंज कर करके नंबर्स रिपीट कर सकते हो. तो ये हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. तो अब हमने पढ़ लिया कि हम रैशनल नंबर्स कैसे लिखते हैं बिटवीन टू नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कैसे लिखते हैं बिटवीन टू नंबर्स. सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? With this we end today's lecture. Hope you all understood. And if you like my video, please like, share and subscribe. Also to let me know in the comment section about which concept you would like to learn next. Keep following my channel for more upcoming educational content. Thank you.